Hello students, hope all of you are well. So today we will start with our next topic, that is the number theory. So the first lecture of the number theory is based on the mathematical induction. Obviously all of you have done so many problems of mathematical induction in your HS syllabus. Though we have learned so many problems, but still we have facing some problems with the help of the mathematical induction. Okay, so let us start with my topic. So before I start, I want to say that the mathematical induction is usually based on a single hypothesis that is known as the well ordering principle. So what is an well ordering principle? Statement can be come in the exam. So well ordering principle is nothing but every non-empty subset of set of all natural number has a least element. तो नेचुरल नंबर का सेट स्टार्ट होता है 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। तो नेचुरल नंबर का कोई भी अगर तुम लोग सबसेट चूज करते हो, कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट चूज करते हो, तो वहां पे एक लिस्ट एलिमेंट रहेगा ही रहेगा। ठीक है, ये होता है वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल। तो इसका मतलब ये है कि सपोज कैपिटल एस बी एनी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, then we must have an element small m belongs to s such that small m will be less equals to small s for every s belongs to capital S। ठीक है, जनरली नेचुरल नंबर में ही एक लिस्ट एलिमेंट है, वो है 1। ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड करके हम लोग जो चैप्टर है, मेरा टॉपिक है अभी, वो है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो उसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन सेज दैट इफ कैपिटल एस बी ए सबसेट ऑफ सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर सच दैट 1 बिलोंग्स टू एस and if k belongs to s, then k plus 1 belongs to s. If these two conditions are satisfied, then s and natural number both becomes same. That is, whenever 1 be an least element of capital S and for k belongs to s, if k plus 1 the next element also belongs to the set S, then there will be no difference between the set of all natural number and the set capital S. तो यहाँ पे हम लोग ये स्टेटमेंट को ऐसे भी लिख सकते हैं, से Pn बी द स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग ए नेचुरल नंबर n, जो Pn एक है वेरिएबल का n के ऊपर प्रोपोजिशन हम लोग किए हुए हैं, प्रोपोजिशनल फंक्शन। वहां पे इसके साथ तुम लोग इसको मैच भी कर सकते हो। देखो कैसे आ रहा है, Pn एक प्रोपोजिशनल फंक्शन है n के ऊपर डिपेंड करके। n का कुछ वैल्यू के लिए ट्रू हो सकता है, n के कुछ वैल्यू के लिए फॉल्स हो सकता है। ठीक है, तो n की इक्वल टू 1 के लिए अगर P1 ट्रू होगा और इफ pk प्लस 1 इज ट्रू व्हेनेवर pk इज ट्रू, अगर pk ट्रू पकड़ के हम लोग दिखा सकते हैं pk प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू, देन वी विल डिक्लेयर दैट pn इज ट्रू फॉर ईच एंड एवरी n बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। सो इट इज नथिंग बट द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो ये जो होता है ये वैलिडिटी ऑफ आर्गुमेंट का जैसे ही है। ठीक है ना, जे कि हम लोग कह रहे हैं कि फॉर ऑल एन ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो फॉर ऑल एन का मतलब है यूनिवर्सल क्वांटिफायर। तो फॉर ऑल के वी कैन राइट डाउन द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ऑल्सो इन दिस फॉर्म। ठीक है, P1 के लिए ट्रू है, 2 के लिए ट्रू है, k के लिए अगर ट्रू है, ये सभी के लिए अगर ट्रू होगा तो ऑटोमेटिकली किसके लिए ट्रू होना चाहिए, k प्लस 1 के लिए भी ट्रू होना चाहिए। तभी जाके हम लोग कह सकते हैं कि फॉर ऑल के p k द स्टेटमेंट इज ट्रू। Okay, this principle is nothing but the principle of mathematical induction. So let us start with some problems which are very important for exam. Say the first says that 3 plus root 5 whole to the power n plus 3 minus root 5 whole to the power n is an even integer. We have to prove this. Okay, so we are considering the statement p n equal to this. Now we can see that p for n equal to 1 the statement is true because 3 plus root 5 plus 3 minus root 5 cancel out, this equal to 6. For the result is true for n equals to 1. So we are assuming that the result is true for n equal to 1 to up to k. So what we have to show, after assuming this n equals to 1 to up to k the result is true, we have to show that the result is true for k equal to k, n equal to k plus 1. Okay, so p k plus 1 क्या होता है यहाँ पे, n के जगह पे k प्लस 1 बिठा देंगे, दिस इज इक्वल्स टू k प्लस 1। तो अभी हम लोग इसको a पकड़ते हैं और इसको b पकड़ते हैं, तो ये हो जाएगा a टू दी पावर k प्लस 1, ये हो जाएगा b टू दी पावर k प्लस 1। तो a का वैल्यू ये है, b का वैल्यू ये है। ठीक है, तो अभी a टू दी पावर k प्लस 1 प्लस b टू दी पावर k प्लस 1 को ऐसे हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। देखो सिंपल या अलजेब्रा यहाँ पे यूज किया है मैंने, और यूज करके ऐसे हमने यहाँ पे इसको लिखा हुआ है। ठीक है, तो a प्लस b का वैल्यू क्या आता है, 6 आता है, और ab का वैल्यू क्या आएगा, 3 प्लस रूट 5, 3 माइनस रूट 5 मल्टीप्लाई कर दोगे तो 9 माइनस 5 आएगा, दैट इज 4। तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि ये 6 है और ये 4 है। अभी मेरा रिजल्ट ट्रू था n इक्वल टू 1 अप टू k के लिए, तो इसका मतलब a टू दी पावर k प्लस b टू दी पावर k इज एन इवन इंटीजर, a टू दी पावर k माइनस 1 प्लस b टू दी पावर k माइनस 1 इज ऑल्सो एन इवन इंटीजर। ऑल्सो यू कैन
see that 6 and 4 are outside, so you can take common 2 whole of this integer. Okay, so obviously any integer which is multiplied by 2 is nothing but an even integer, so ये automatically क्या हो गया, even integer हो गया. ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि रिजल्ट ट्रू है k प्लस 1 के लिए. तो बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर ऑल n के लिए ये रिजल्ट ट्रू होगा. क्लियर. दूसरा जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम तुम लोग एचएस में किए हुए हो, तो ये प्रॉब्लम मैं यहाँ पे नहीं समझा रहा हूँ, तुमको देख के ही तुम लोग को पता चल जाएगा. ठीक है. से थर्ड प्रॉब्लम आई वांट टू डिस्क्राइब. यहाँ पे देखो, प्रूफ करने के लिए दिया हुआ है n फैक्टोरियल का वैल्यू 2 टू दी पावर n से ज्यादा होगा जब n का वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 4 होता है. ठीक है, तो यहाँ पे n 4 से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट नहीं होगा, तो पहला ही हमारा एलिमेंट होगा p4. तो p4 का वैल्यू होता है 4 फैक्टोरियल, दैट इज 24, और 2 टू दी पावर 4 का वैल्यू है 16. तो इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है. ठीक है, 24 ग्रेटर देन 16. सो रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 4. सो वी आर assuming that the result is true for n equal to k also, that is k factorial greater than 2 to the power k. This is our assumption. Now what we have to show that, we have to show that p k plus 1 is true. तो k plus 1 क्या होता है, k plus 1 फैक्टोरियल. ठीक है, तो हम लोग को दिखाना है ये कि k plus 1 फैक्टोरियल 2 to the power k plus 1 से ज्यादा होगा. ये हम लोग को एज्यूम्शन नहीं करना है, हम लोग को लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड को प्रूफ करना है. ठीक है, बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देता है, यहाँ पे बोथ साइड पे k प्लस 1 लिख देता है गलती से. ठीक है, वो नहीं होता है. हम लोगों के पास k फैक्टोरियल ग्रेटर देन 2 टू दी पावर k है. हम लोगों को दिखाना है कि k प्लस 1 फैक्टोरियल विल बी ग्रेटर देन 2 टू दी पावर k प्लस 1. तो इसको कैसे करेंगे, देखो, k फैक्टोरियल ग्रेटर देन 2 टू दी पावर k, दैट इज बाय आवर अजम्पशन. तो बोथ साइड पे हम लोग k प्लस 1 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड k प्लस 1 इंटू k फैक्टोरियल हो जाएगा k प्लस 1 फैक्टोरियल. ठीक है, अभी k प्लस 1 इंटू 2 टू दी पावर k, ये जो वैल्यू है ये 2 इंटू 2 टू दी पावर k से ज्यादा होगा कि नहीं होगा, ये अच्छे से समझो. k का वैल्यू तो ग्रेटर इक्वल टू 4 है, क्योंकि k 4 या 4 से ज्यादा होगा. तो k का वैल्यू अगर 4 से ज्यादा है तो k प्लस 1 का वैल्यू ऑटोमेटिकली 2 से ज्यादा होगा. ठीक है, तो k प्लस 1 के जगह पे अगर हम लोग 2 लिखते हैं तो ये जो वैल्यू है ये इससे ज्यादा हो जाता है, और k प्लस 1 2 टू दी पावर k से k प्लस 1 फैक्टोरियल का वैल्यू ज्यादा है. तो इसका मतलब ये हो गया k प्लस 1 फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन 2 टू दी पावर k प्लस 1. सो वी कैन सी दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1. हेंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल टू 4. अभी प्रॉब्लम 4, 5 और 6 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, और यही टाइप का प्रॉब्लम बार बार रिपीट होता है डिविजिबिलिटी से. ठीक है ना, तो प्रूफ करने के लिए दिया हुआ है यहाँ पे 10 टू दी पावर n प्लस 1, 10 टू दी पावर n प्लस 1 इज डिविजिबल बाई 3. इसको हम लोग को प्रूफ करना है कि ये डिजिट किससे डिवाइड होगा, 3 के लिए डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. तो हम लोग पकड़ रहे हैं ये पूरा स्टेटमेंट को, Pn इक्वल टू दिस क्वांटिटी इज डिविजिबल बाई 3. अभी n का वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वैल्यू आ जाता है 111, which is obviously divisible by 3. So let we assume that the result is true for n equal to k. तो pk क्या होगा, 3 divides 10 to the power k plus 1 plus 10 to the power k plus 1. अभी a अगर b को डिवाइड करता है तो मैंने पहले भी तुम लोगों को कहा है a डिवाइड्स b का मतलब ये है कि b a का मल्टीपल होगा. ठीक है, तो 3 अगर 10 टू दी पावर k प्लस 1 प्लस 10 टू दी पावर k प्लस 1 को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब 10 टू दी पावर k प्लस 1 plus 10 to the power k plus 1, it will be multiple of 3. So this will be equals to 3 into m for m belongs to z. ठीक है, अभी क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग को लाना है 10 to the power k plus 2, 10 to the power k plus 1 और प्लस 1. ठीक है, तो यहाँ पे n की जगह पे अगर k plus 1 बिठाएंगे तो हम लोग देख सकते हैं कि यह आएगा 10 to the power k plus 2, 10 to the power k plus 1 plus 1. So now how we can take this one out? Simply multiply both side by 10. Whenever you multiply both sided by 10, it will automatically become 10 to the power k plus 2, 10 to the power k plus 1 plus 10. But we want to get here 1. Here already 10 is appearing. So can we write down this as 1 and take minus 9 here? Because 1 plus 9 equals to 10 and 9 is taken on the right hand side. Okay. Now from the right hand side, obviously you can see that 3 can be taken common and this will be 3 into 10 m माइनस 3. तो m तो एक इंटीजर है, 10m माइनस 3 भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा. तो 3 इंटू सम इंटीजर वो क्या होता है, ये होता है. तो इसका मतलब क्या होगा, 10 टू द पावर k प्लस 2 प्लस 10 टू द पावर k प्लस 1 इज ए मल्टीपल ऑफ 3. That means 3 divides this quantity. So result is true for n equal to k plus 1. Hence by principle of mathematical induction, the result will be true for all positive integer n.
प्रॉब्लम नंबर 5 एक लेंथी प्रॉब्लम है, ये आ सकता है एग्जाम पे, ठीक है। जनरली ये ऑनर्स पे आता है, लेकिन मैं ये तुम लोग को समझा देता हूँ। देखो फिर से वही टाइप ऑफ प्रॉब्लम है, इसको हम लोग को डिवाइड करना है किससे, 24 से। सो हम लोग ले रहे हैं 24, इसको डिवाइड करता है, ठीक है। n इक्वल टू 1 के लिए स्टेटमेंट ट्रू है। नाउ वी आर assuming that the result is true for n equal to k. So 24 divides this quantity. If 24 divides this quantity, then obviously we have an integer m such that this quantity will be 24 into m. Okay, we can write down and take it as 1. Now pk plus 1, that will be equals to 2 into 7 to the power k plus 1 plus 3 into 5 to the power k plus 1 minus 5. What we have to show? We have to simply show that this quantity is a multiple of 24. दिस क्वांटिटी इज ए मल्टीपल ऑफ 24। तो इसको कैसे करेंगे, जब ऐसा कोई प्रॉब्लम दिया हुआ जाता है तो पहला जो पार्ट हमने k के लिए ट्रू करके दिया हुआ है, इससे एक वैल्यू हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो, आइदर वी कैन सब्स्टिट्यूट 3 इंटू 5 टू दी पावर k और वी कैन सब्स्टिट्यूट 2 इंटू 7 टू दी पावर k फ्रॉम 1 हियर। तो यहाँ पे मैंने ये दूसरा जो वैल्यू है 3 इंटू 5 टू दी पावर के, इसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 2 इंटू 7 टू दी पावर के प्लस 1 प्लस 15 को हम लोग 5 को छोड़ के 3 इंटू 5 टू दी पावर के आएगा। तो 3 इंटू 5 टू दी पावर के का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 24m प्लस 5 माइनस 2 इंटू 7 टू दी पावर के। तो 1 से हमने 3 इंटू 5 टू दी पावर के का वैल्यू निकाला है और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके दिया हुआ है माइनस 5। तो इसको सिंपल कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पे देखो 5 इंटू 24 आ रहा है, तो ये 24 का मल्टीपल हो चुका है। लेकिन ये जो टर्म है इसको देख के हम लोग को पता नहीं चल रहा है कि ये 24 का मल्टीपल है, ठीक है। 4 इंटू 7 टू दी पावर के प्लस 20, ये 24 का मल्टीपल है, ये हम लोग को पता नहीं चल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर फिर से हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन अप्लाई करेंगे। तो हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम लोग चूज कर रहे हैं एक स्टेटमेंट Qn जो क्या है 24 इसको डिवाइड करता है, ठीक है। 24 डिवाइड्स 4 इंटू 7 टू दी पावर के प्लस 20, इसको हम लोग चूज कर रहे हैं, ये दूसरा स्टेटमेंट है, ठीक है। तो n इक्वल टू 1 के लिए ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देयर एग्जिस्ट इंटीजर r सच दैट 4 इंटू 7 टू दी पावर p प्लस 20 इक्वल्स टू 24r, और इसको हमने यहाँ पे प्रूफ किया है 4 इंटू 7 टू दी पावर p, इसका वैल्यू फिर से यहाँ से पुट करके हम लोगों ने यहाँ पे बिठा दिया है, ठीक है ना। 4 इंटू 7 टू दी पावर p का वैल्यू क्या होगा, 24r माइनस 20। तो 7 इंटू 24r माइनस 20 प्लस 20 करेंगे तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि 24 कॉमन आ रहा है। तो जो दूसरा स्टेटमेंट मैंने लिया था 4 इंटू 7 टू दी पावर n प्लस 20, ये डिविजिबल बाय 24 हो रहा है बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो ये प्रॉब्लम इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि एक प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के प्रॉब्लम के बीच में दूसरा मैथमेटिकल इंडक्शन हम लोग हेल्प ले रहे हैं, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ से अलग से प्रूफ किया कि ये क्वांटिटी 24 से डिवाइड हो रहा है। तो पी के प्लस 1 क्या हो रहा है, 5 इंटू 24m प्लस 24 का कुछ मल्टीपल, ठीक है, 24 इंटू सम इंटीजर r। तो 24 दोनों से कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाता है 5m प्लस r। m इंटीजर है, r इंटीजर है, सो 24 इंटू इंटीजर आ रहा है। तो p के प्लस 1 भी 24 का मल्टीपल है। तो इसका मतलब n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए हमारा जो पहला स्टेटमेंट था ये स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है। दैट मीन्स बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ नेचुरल नंबर। अभी तुम लोगों को ये प्रॉब्लम समझ में आ जाएगा, ये प्रॉब्लम एग्जाम में रिपीट हुआ है, ठीक है ना। ये प्रॉब्लम को अच्छे से कर लो और समझ लो, और अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो मुझको कमेंट कर सकते हो, और ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना।